हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रॉकन एटम्स यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी जीओसी की सेकेंड लेक्चर की जर्नी। एंड अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट ना। सो फर्स्ट यू नीड टू फॉलो द फर्स्ट लेक्चर एंड देन वी गो फॉर द सेकेंड लेक्चर, राइट ना। तो ठीक है, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ ताकि हम क्लास में कनेक्ट हो जाए व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लेक्चर 1, and this is the lecture 2, which are basically designed for the class student which are related to the target NEET and JEE aspirants right now. And I also designed this lecture in the form of class 11th also, right now जो student class 11th में वो भी इस lecture को continue कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट लेक्चर को रिकॉल कर देता हूँ ताकि हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, है ना। आप अपना पेन और कॉपी निकालें, राइट ना। ओके, तो first lecture basically was designed on the basis of history of organic compound. कि what was the history of organic compounds, right now, and who classify the organic compounds and what was the classification of the compounds which obtained in the nature. So first scientist, whose name is Lamoury, in 1675 classified the known chemical compounds into two categories, basically into three categories. The first categories was the compounds which is obtained from the vegetable sources, and the second category was the compounds which is obtained from the animal sources, and the third was the compounds which is obtained from the elements of earth crust. But after some times the second scientist, whose name is Antoine Lavoisier, who go for the chemical analysis of the compounds which is obtained from either plant source or animal sources. They found very similar properties and very similar chemical structures, the compound which can be extracted from the plant as well as the animals. मतलब जो compounds हमने plant और animal से categorize किया उसका chemical analysis करने पर हमें ये पता चला कि chemical structures के हिसाब से वो compounds कैसे हैं, similar। अगर chemical structure के हिसाब से compound similar है बेटा जी, है ना, तो we are not able to categorize the compound into two different group, है ना। क्योंकि अगर सेम केमिकल स्ट्रक्चर्स है, सेम केमिकल फिनोमेना है, तो हम एक ही टाइप के कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसलिए जितने भी नॉन कंपाउंड्स थे उनको लैवोसियर ने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, दैट मीन्स वी कैन से दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सोर्सेज। And after that the second compound was categorized in the terms of inorganic compounds which is obtained from the earth crust. ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, I hope so. But after sometimes the second thought has been given by the Berzelius, who wrote that the vital theory of organic compound, right ना। vital theory कहने का मतलब क्या, that organic compounds cannot be created or cannot be synthesized in the lab। मतलब उनका मानना ये था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेंड होता है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग सोर्स से ऑब्टेंड होता है तो वो किसी न किसी वाइटल प्रोसेस या किसी न किसी मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा क्या होता है, उनके फॉर्मेशन कंट्रोल होते हैं। मिस्टीरियस फोर्सेस के रूप में बेटा उन्होंने नेचुरल पावर लाइक गॉड की बातें कर सकते हैं, है ना। दैट्स वाई दिस थ्योरी इज टर्म्ड एज वाइटल थ्योरी। वाइटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर synthesized by the vital process, like जैसे respiration vital process होता है आपका, राइट ना। photosynthesis vital process होता है। आपने photosynthesis के प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज देखा भी होगा, एंड ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट ना। तो उनका ऐसा मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब बट दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सम नेचुरल पावर, एंड दैट नेचुरल पावर इज मिस्टीरियस फोर्स, एंड दैट मिस्टीरियस फोर्स वाज गॉड according to him. But after some times there is a sudden experiment which is performed by the Höhler, and it is a type of accidental we can say that reactions in which we obtain the first organic compounds from their rearrangement reactions, right ना। तो वो क्या कर रहे थे, अमोनियम साइनेट को हीट कर रहे थे। आफ्टर द हीटिंग द अमोनियम साइनेट they get the first compound which is named as urea, and that urea is also similar to the compounds which is obtained into the human urine. That's why they categorize urea as organic compounds. And from the Höhler's sudden experiment or accidental experiment, there is evolutions come into the journey of new organic compounds, new organic chemistry,
and lots of chemical compounds can be extracted in the lab, in which the first synthesized organic compound is known as acetic acid, that is extracted from their element, and after that lots of chemical compounds can be synthesized into the laboratory. And nowadays we have seen the millions of carbon compounds can be exist in the nature. If the millions of carbon compounds is exist in the nature, it is due to the यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब यूनिक प्रॉपर्टीज के रूप में बेटा से क्या आता है? यूनिक प्रॉपर्टीज के रूप में वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, राइट. नहीं कि कार्बन के पास टेट्रा कोवेलेंसी कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टीज होती है, टेट्रा कोवेलेंसी बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी होता है. दैट इज द वन यूनिक प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कि कार्बन हैज़ द फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब बेटा क्या है कि वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, राइट ना. तो ये सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल, राइट ना. तो वो डबल बॉन्ड का कंटिन्यूस सीरीज बना सकता है. तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन के कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके बेसिस पर कार्बन क्या कर सकता है, तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स नेचर में सिंथेसाइज कर सकता है. अब देखिए आगे हम अभी स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर एंटर्स इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिफोर एंटर्स इनटू द आइपिक नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और बिफोर द डिस्कशन ऑफ आइसोमेरिज्म, आई विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, बिकॉज दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्योंकि जब तक आपको कार्बन किस तरीके से बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम नहीं होगा तो द जर्नी विल बी नॉट हैप्पियर, है ना. क्योंकि मैं अगर बॉन्ड बनाऊंगा आपको पता ही नहीं होगा कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, हाउ कार्बन सिंथेसाइज देयर केमिकल बॉन्ड, तो आगे की जर्नी थोड़ी कठिन हो सकती है. इसलिए बिफोर एंटर्स इनटू द आइसोमेरिज्म, बिफोर एंटर्स इनटू द ipic nomenclature of the organic compounds and their classification based on their structures, I will go for the bond formation of carbon compounds, right now. So first we will discuss about the bond formation of chemical compounds, and I hope आपकी जर्नी यहाँ तक अच्छी रही हो, राइट ना बेटा. तो आगे का जो जर्नी है हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे द सेकेंड लेक्चर ऑफ जीओसी, एंड दैट इज रिलेटेड टू द कार्बन कंपाउंड. ठीक है, तो यहाँ से आप शुरू हो जाएं, आपकी जर्नी यहाँ से बिल्कुल नहीं होने वाली है. ठीक है, ओके बेटा. तो दैट मीन देखो, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कार्बन इज एबल टू फॉर्म टेट्रा कोवैलेंसी. टेट्रा मीन्स पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, टेट्रा मीन्स 4 होता है. कोवैलेंसी कहने का मतलब क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं, राइट ना. नाउ तो व्हाट इज द कोवैलेंसी? कोवैलेंसी कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, द कार्बन या एनी एलिमेंट विच हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म देयर कोवैलेंट बॉन्ड, या विच हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, या बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, है ना. तो जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, राइट ना. और हमने यहाँ पर देखा भी है, अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे देखा भी है क्या है. देखो, कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब क्या, देखिए अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग करने का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन आपने शेयर किया तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन आपने शेयर किया तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शेयर किया. सच टाइप ऑफ शेयरिंग इज नोन एज म्यूचुअल शेयरिंग, राइट ना. 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने शेयर किया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने शेयर किया, दैट इज द शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स, राइट ना. सो बिटवीन 2 एटम्स of electronegativity element to complete their octet. अब देखिए यहाँ से 2 रूल हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक ऑक्टेट का रूल होता है और एक डुएट रूल होता है. तो बेटा देखो, ऑक्टेट की बात अगर करते हैं, ऑक्टेट का मतलब ये होता है 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट. ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, है ना. मतलब कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. वाई ऑक्टेट रूल फॉलोड बाय द chemical compounds? It is due to the electronic configuration of any inert gas. Like जैसे मान के चलो क्या बेटा कि आपके पास है नियॉन, आपके पास है नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p6. अब देखिए आउटर मोस्ट में आपके पास यहाँ पर जो आउटर मोस्ट में है वो 2 इलेक्ट्रॉन है s में,
दैट इज द इनर कोर ऑर्बिटल्स, एंड H इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो यहाँ से हम ऑन द बेसिस ऑफ H इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से दैट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैज़ प्रॉपर्टी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल कोवेलेंट कंपाउंड, सो द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ वेरी नियर टू द हीलियम। अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के नियर है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम क्या लिख सकते हैं 1s2। तो हाइड्रोजन किसके रूल को फॉलो करेगा, डुएट रूल को करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स पर डुएट, 8 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑक्टेट। तो यहाँ से हाइड्रोजन हीलियम के पास है, इसलिए हाइड्रोजन जो कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा दैट इज कंसिडर एज डुएट इलेक्ट्रॉन। डुएट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो व्हाट वी कैन से दैट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज द केमिकल बॉन्ड formed between the 2 electronegative atoms by the sharing of their mutual electrons, and the number of electrons will be same during the sharing, कि 1 इलेक्ट्रॉन के बदले 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के बदले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन के बदले 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। सो म्यूचुअल शेयरिंग कैन बी डन। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कह भी सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग द एलिमेंट इज एबल टू फॉर्म 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आइदर सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन ने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो H2 का सिंगल बॉन्ड बनाया। अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम है बेटा, एक ऑक्सीजन एटम अगर हम यहाँ पर रखते हैं, दूसरा ऑक्सीजन एटम हम यहाँ पर रखते हैं, इधर आप देख सकते हैं क्या बेटा, देखो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और होने चाहिए, 4 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं थोड़ा और बढ़िया से क्लीन करके लिखता हूँ, तो इतना बेटा जस्ट मिनट वेट कर। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यानी यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन का अगर बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2, 2s2 एंड 2p4, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पहला ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर आपका दूसरा ऑक्सीजन एटम, दोनों ऑक्सीजन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर रिप्रेजेंटेड है। लेकिन हमारा सेकेंड एटम का जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है मैं इधर दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड एटम के 6 इलेक्ट्रॉन्स। बट इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 देन फ्रॉम ऑक्टेट रूल we can say that valency is equal to 8 minus valence electron. So 8 minus 6 is equal to 2. That means valency of oxygen is 2. That's why here oxygen shared their 2 electrons to complete their octet, right ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। अब देखिए बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन का क्या कॉन्सेप्ट है, नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपका, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p3। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा वो 5 है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंट, राइट ना, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस है, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके 5 हो गए, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, वैलेंसी विल बी 8 माइनस 5, 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी है उसी 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके नाइट्रोजन क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सेम फिनोमेना कार्बन हैज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है
कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो क्या कहता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन। जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, क्योंकि शेयरिंग है तो कुछ ना कुछ वो फिनोमेना को फॉलो करेगा। अब देखो क्या कहता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन एंड आर लोकलाइज्ड बिटवीन टू एटम्स कॉर्नर्स। ठीक है ना, कंसर्न मतलब क्या कहता है बेटा यहाँ पर कि दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। सेम स्पिन में होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे तो स्टेबल कहलाएंगे। अब देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर इन 3 वेज, 3 तरीके से शेयरिंग हो सकता है। पहला देखिए क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्बन, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं बेटा क्या है, देखिए कार्बन है, कार्बन का मैं एटॉमिक नंबर 6 लिखता हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए बेटा क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p2। कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए वो 4 है। अब कहता है क्या कि जो शेयरिंग है उसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 तरीके का शेयरिंग क्या है देखिए, तो कार्बन के 4 में से मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन से इधर है, 1 2 3, और फिर से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3। अब यहाँ पर शेयरिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का है। तो अगर पहला कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया और पहला कार्बन दूसरे के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी और सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग, और इस तरीके से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, देन सच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड और सच टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब अगर देखिए कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, और दूसरा कार्बन एटम यहाँ पर लेता हूँ बेटा 1 2 3 4। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का और इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से वो क्या कर रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब समझिए थोड़ा सा, देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग क्या है, कार्बन के अगेन 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, चौथा यहाँ पर बेटा। ठीक है, दूसरे कार्बन एटम का भी 1 2 3 और चौथा यहाँ पर। अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पहला कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, और पहला कार्बन एटम दूसरे के साथ इस तरीके से शेयर कर रहा है। दोनों कार्बन एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा, वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। इफ 1 electrons is shared by 2 atoms, single bond is formed. If 2 electrons is shared by the 2 atoms, double bond is formed. And if 3 electrons can be shared by 2 atoms, the triple bond is formed. Clear है? No doubt. आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो क्या करता है। नेक्स्ट आपको क्या क्या चीज़ समझना है, कोवैलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या क्या चीज़ समझना है। तो देखिए क्या कहता है, 1 ऑर्बिटल, आपको ये बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट याद होने चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखिए क्या कहता है, 1 ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्ट फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट ना। 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। नाउ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल। एक ऐसा ऑर्बिटल्स जिसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आधे इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, तो वो क्या करेगा, जैसे देखो मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ, आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, हम नाइट्रोजन का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p3, है ना। अब देखिए यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बाहर करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेटा जी है आपके पास क्या है, 2s2 2p3। अब देखिए 2s2 2p3, 2s s सबसेल के एक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 2px 2py और 2pz, और ये अपना 2s एटम्स। आप समझो, देखो
2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ में, ठीक है, एक प्लस हाफ में है और दूसरा माइनस हाफ में। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। हंस लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है if the orbital has same energy or if the orbital has energy of degeneration, right now, then the first single electrons will enters into the same spin and after that pairing takes place। तो p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो 1 2 3, all these 3 electrons will enters with same spin and that spin is known as, that spin is basically known as what, प्लस हाफ स्पिन, राइट ना। ये क्लॉकवाइज स्पिन है जिसको कि हम प्लस हाफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के हाफ स्पिन है। अब देखिए p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सो द मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट बाय द p विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, p3 कॉन्सेप्ट है, तो p3 कॉन्सेप्ट मतलब अगर p6 होता तो कंप्लीट फील्ड, p3 है तो कैसा फील्ड हो गया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये बेटा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, यानी दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब देखिए क्या कहता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाफ फील्ड है तो ऑब्वियसली अनपेयर्ड है। पेयर्ड वाला कौन है, ये पेयर्ड है, प्लस हाफ स्पिन और माइनस हाफ स्पिन के साथ। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो आपके पास है यहाँ पर, राइट ना, क्या से बेटा, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ना, सो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स and unpaired electrons, that means orbitals with unpaired electrons can share single electrons, ठीक है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है तो वो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 नाइट्रोजन एटम के साथ शेयरिंग हो तो दूसरे नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन इसमें जब एंटर करेगा तो अपोजिट स्पिन में एंटर करेगा और तब जाकर के n ट्रिपल बॉन्ड n का फॉर्मेशन होगा। तो देखो क्या कहता है कि 1 ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, 2 अपोजिट स्पिन सर। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया फ्रॉम अनदर एटम, मतलब दूसरे नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको मैंने पीले रंग से दर्शाया, टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल, अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करें। समझ में आना। सो सच टाइप ऑफ bond which is formed by the sharing of electrons is considered as covalent bond। I hope यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइम बिना लैप्स किए हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कॉन्सेप्ट है आपका, आगे बेटा देखो क्या कॉन्सेप्ट है। आगे का कॉन्सेप्ट कहता है क्या, द टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल और टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज एन कंडीशन, इज अ कंडीशन, एन नहीं होना चाहिए, इज अ कंडीशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ऑर्बिटल अपनी अनपेयर्ड कैपेसिटी को डुएट में कन्वर्ट करता है या ऑक्टेट में कन्वर्ट करता है, देन सच टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज द कोवेलेंट नेचर ऑफ दैट एलिमेंट, कि ये उसकी कोवेलेंसी कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, उसका कोवेलेंसी कहलाता है। नेक्स्ट देखो, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ही पूरे करने हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं जो स्टेबल है नेचर में, उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखिए बोरॉन ट्राईहाइड्राइड, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड की बात अगर करते हैं तो बोरॉन में देखो बेटा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p1। तो देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1 होता है। तो एक बोरॉन और 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और एक बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, 1 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2 और हाइड्रोजन का 3। यहाँ से ऐसा शेयरिंग हो गया, यहाँ से ऐसा शेयरिंग हो गया, यहाँ से ऐसा शेयरिंग हो गया। और अब बात करते हैं अगर बोरॉन में, तो बोरॉन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो पाए, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स हो पाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, तब भी स्टेबल है। तो कहने का मतलब समझिए क्या, कि कोई भी नेचर में जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दे विल एग्जिस्ट ओनली इन द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तब भी वो नेचर में स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। सो ऑक्टेट इज़ नॉट ए रूल, कंपल्सरी रूल नहीं है। यहाँ तक क्लियर है?
कोई डाउट नहीं है ना? ओके नाउ अब देखिए क्या होता है, इफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल्स देन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट। अब इसका देखो एक एग्जांपल देता हूँ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना? इसका एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है, इसका एग्जांपल समझ लीजिए, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? देखिए क्या कहता है, फिर से सुनिए, इफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हैज एम्प्टी ऑर्बिटल्स देन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 है ना, 2p6 6010 हो गया, 3s2 3p3 एंड 3d0। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 हो ना तो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 पॉसिबल हो सकता है। अगर 0 है तो 3s, 1 है तो 3p और 2 है तो 3d। तो 3s 3p 3d तीनों ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। ऑब्वियसली 3d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो देयर सब सेल देयर ऑर्बिटल विल बी वैकेंट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मैं नीचे लिखता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया 3s2 3p3 एंड 3d0। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p3 3d0 तो देखिएगा यहाँ पर आगे की जर्नी को समझिए। यहाँ पर क्या है, 3s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। नेक्स्ट देखिए 3p3 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड आगे है 3d0 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz², राइट ना? इस तरीके से 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब आपको समझना है क्या, देखो इसमें 3 अनपेयर्ड है, इसमें 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एनर्जी ये एक्साइटेड स्टेट में कुछ अलग कॉम्पिटिशन शो करेगा। क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे ही आप एनर्जी बढ़ाते हैं द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3s विल मूव इनटू 3d। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ आ जाएगा तो यहाँ नया इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो नाउ आफ्टर द इंक्रीजिंग एनर्जी व्हाट वी हैव सीन आफ्टर द इंक्रीजिंग ऑफ द एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स जंप टू द हायर ऑर्बिट एंड टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए 5 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो गए। अब अगर ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो गए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में या इन द एक्साइटेड स्टेट फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, बिकॉज ऑल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयर्ड बाय अनदर अनपेयर्ड या ऑल द अनफिल्ड ऑर्बिटल्स या ऑल द अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स कैन बी पेयर्ड बाय द शेयरिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल। समझ में आ गया यहाँ तक? तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और 5 वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगा। कितने वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगा, 5। क्लियर है बेटा? ओके चलो ठीक है फिर, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रख सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप brokenatoms@gmail.com brokenatom0910 आप ईमेल कर सकते हैं। देखिए अगर कोई डाउट हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल बॉक्स दे देता हूँ, राइट ना? ईमेल बॉक्स है brokenatoms0910@gmail.com। आप इस पर अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल कन्वे योर मैसेज, राइट ना? ओके फिर चलो, तो brokenatoms0910@gmail.com इस पर आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ओके नाउ अब देखो क्या होता है, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ वेरिएबल बैलेंसिंग, बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर्स आर नॉट द फिक्स्ड कैरेक्टर्स, दे आर वेरिएबल इन नेचर। तो आपको समझना है क्या, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइटम्स बाय विच दे आर एबल टू फॉर्म वेरिएबल बैलेंसी, वो किस तरीके से वेरिएबल बैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ समझना कंपलसरी है। तो देखो बेटा जी, वेरिएबल बैलेंसी के क्या रीजन है, तो क्या कहता है, देखिए पहला चीज, वेरिएबल बैलेंसीज आर शोन बाय दोज एलिमेंट विच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन आउटरमोस्ट सेल। मतलब अगर आउटरमोस्ट सेल में वैकेंट ऑर्बिटल्स है तो वेरिएबल बैलेंसी शो कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्लोरीन का।
ठीक है ना। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है ना। तो देखिए एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d0। ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है आपका, है ना। अब देखिए अगर ये वैकेंट ऑर्बिटल से थोड़ा ध्यान से दीजिए, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p3। तो मैं यहाँ पर ऑर्बिटल सीधा बना रहा हूँ, s p में 3 ऑर्बिटल्स, d में 5, 1 2 3 4 5। अब देखो बेटा यहाँ पे समझना, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं s के 2 इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ। p में 5 हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम इस स्टेट में देखें तो दिस स्टेट ऑफ क्लोरीन हैज़ ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वो कौन सा बेटा 3pz1। अगर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। लेकिन साथ में क्या है, 5 d ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं इनके। अगर 5 d ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं बेटा और आपने एनर्जी बढ़ा दिया, आपने एनर्जी बढ़ाया, और अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में p के ऑर्बिटल्स चेंज हो जाएंगे और वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगे। 5 में से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 1 2 3 बेटा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फिर से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया तो देखो 3 यानी 1 2 3 4 और 5वां इलेक्ट्रॉन से यहाँ आ गया। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 1 2 3। अब इसकी वैलेंसी 3 है तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर 3 और 1 और इसकी वैलेंसी 3। यानी हम क्या देख पा रहे हैं, क्लोरीन में जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते जाएंगे उसकी वैलेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से 2 में आएगा, 2 से 3 में, मतलब 1 से 3 में जाएगा, 3 से 5 में आएगा और 5 से 7 में, तो 7 इलेक्ट्रॉन तक उसकी वैलेंसी वेरिएबल हो सकती है। तो ये वैलेंसी का जो वेरिएबल कॉन्सेप्ट है वो किस पर डिफाइन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके वैलेंस शेल में और कितने ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं, इसके बेसिस पर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट डिफाइन हो रहा है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है बेटा, सेकेंड रीजन क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड in the subcell of the same cell to form the maximum number of unpaired electrons. Maximum covalency is shown in the excited state. मतलब अगर एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में आप रखते हैं तो वो मैक्सिमम कोवेलेंसी को शो करता है, और मैक्सिमम कोवेलेंसी क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 7। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी रिक्वायर्ड for the excitation of electron is called excitation energy and promotional energy. मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में कब जंप करेगा, जब आप एनर्जी दे रहे हैं, एंड सच एनर्जी बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, राइट ना, देन सच टाइप ऑफ एनर्जी इज कंसिडर्ड एज एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन या एनर्जी ऑफ प्रमोशन, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। नेक्स्ट देखिए आपको क्या कहता है, एक्साइटेशन रूल एंड प्रमोशनल रूल। तो एक्साइटेशन रूल या प्रमोशनल रूल क्या है कि व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जंप इनटू द सेम ऑर्बिट, राइट ना, जंप इनटू द सेम ऑर्बिट, ऑर्बिट सेम होना चाहिए। देखो ऑर्बिट कैसे सेम है, 3s 3p 3d, ऑर्बिट सेम है ना बेटा, 3s 3p 3d, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो नंबर ऑफ सेल क्या है, 3 है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर सेम होते हुए इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, मतलब सेम ऑर्बिट में डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जंप करता है, तो ऐसे रूल को हम बोलते हैं प्रमोशनल रूल। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की जर्नी देखने का करता है। अब देखो क्या करता है, द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करना है, उसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है, तो क्या कहता है, to explain the formation of covalent bond, the two theories based on the quantum mechanics have been proposed. The first theory is valence bond theory, VBT theory जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, and the second one is the molecular orbital theory, MOT। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे जब केमिकल बॉन्ड हम पढ़ाएंगे तब। अभी MOT का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का रिक्वायरमेंट है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब देखो क्या कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है। तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज प्रपोज बाय हिटलर एंड लैंडन, देयर आर 2 साइंटिस्ट। उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट डेवलप किया। द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द ओवरलैपिंग थ्योरी,
एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। तो पहले हम ओवरलैपिंग समझेंगे और फिर हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। तो देयर आर टू मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक कहता है क्या कि अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जहाँ कहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हायर लेवल पर हम जाकर के ये देखते हैं बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द ऑर्बिटल, सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द टू एटम्स then definitely orbitals will overlap. So this is the concept of overlapping which is developed by the Hitlers and Londons, right now. अब देखो यहाँ पर बेटा अगला, so overlapping theory क्या कहता है, ये चीज़ समझ देखो overlapping theory क्या कहता है। तो देखो बेटा overlapping theory क्या कहता है, this theory is proposed by Hitlers and London to explain how a covalent bond is formed। मतलब ये थ्योरी ये बताता है आपको कि कैसे कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब कैसे कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट, देखिए क्या कहता है, द मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी आर टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम्स, है ना। मतलब क्या होता है, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड अगर ओवरलैपिंग से डेवलप होता है या ओवरलैपिंग से बनता है तो ओवरलैपिंग डेवलप कैसे हो रहा है, तो कहता है क्या, द ओवरलैपिंग कैन बी अकर्स बिटवीन टू हाफ वैलेंस शेल। जैसे देखो अभी शेयरिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट था, शेयरिंग ने क्या बोला, इफ द सबसेल इज अनपेयर्ड या इफ द सबसेल इज हाफ फिल्ड देन द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयर, राइट ना। इफ द सबसेल कंसिस्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन द सबसेल इज शेयर। अब सेम चीज़ कहता है कि अगर आपका ऑर्बिटल या सबसेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो उस ऑर्बिटल का भी क्या होगा, ओवरलैपिंग, ठीक है। और ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप होंगे, जो हाफ फिल्ड होंगे, आधे बड़े होंगे, अनपेयर्ड होंगे, ठीक है ना। अब एक ऐसे मान लो कि एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या और दूसरा ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, वहाँ पर शेयरिंग हो सकता है। अब मान लो क्या, एक ऑर्बिटल कंप्लीट वैकेंट है और एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, शेयरिंग वहाँ पर भी हो सकता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड सच टाइप ऑफ नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो समटाइम टर्म्स एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक का लोन पेयर दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल्स, तो वहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड सेटअप हो सकता है। अब देखो क्या कहता है बेटा, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, विथ अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। अब एक ऑर्बिटल से प्लस हाफ स्पिन का, दूसरा एक और ऑर्बिटल से प्लस हाफ फिट का, और मान लीजिए ये दोनों 1s1 1s1 है, तो 1s1 1s1 क्या हो सकता था, ये भी हाइड्रोजन होगा, ये भी हाइड्रोजन होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो s ऑर्बिटल चूंकि स्फेरिकल शेप का होता है तो पहले हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एक फोर्स सेटअप होगा। सोचिएगा, इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन एटम, न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज बीन सेटअप बिटवीन टू एटम्स। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड सेटअप हुआ बेटा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटेक्शन सेटअप हुआ, तो ये दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा एस ऑर्बिटल्स का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का या एस ऑर्बिटल्स का एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कंसिडर किए जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या, एस और एस के ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बीच में इंटरेक्ट करा पाए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में, प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, देखो, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। अभी बताया मैंने आपको क्या, कि हाउ ओवरलैपिंग प्रोसीड बिटवीन द टू एटम्स, it depends upon two things. First thing was the force of attraction established by the nucleus of one atom on the electrons of second atoms, and the force of attraction also established by the atoms of second atom on the electrons of first atom. So such type of attraction setup can develop the overlapping. Clear हो गया ना, कोई confusion ले अब तो नहीं ना बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो बेटा क्या कहता है, ओवरलैपिंग थ्योरी और भी आगे है, ये क्या करता है इसको भी देखो, है ना। अब देखो नेक्स्ट ओवरलैपिंग थ्योरी क्या करता है, नेक्स्ट यहाँ देखो क्या कहता है, सो कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है, अभी हमने देखा, बिकॉज शेयरिंग ओनली पार्टिसिपेट
between the two half-filled subcell, और subcells are also directional in nature except S subcell. S subcell आपका directional नहीं होता, but P subcell, D subcell, F subcell, these are the subcell of directional nature, right ना. तो S subcell directional nature का नहीं होता, ठीक है ना. Now देखो, extent of overlapping directly proportional to the strength of the chemical bond. इसका मतलब अगर किसी केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बहुत हाई है, मतलब हाई अमाउंट में एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को पेनिट्रेट कर रखा है, लार्ज एनर्जी एक्सचेंज हो रखा है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी हाई होगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. नेक्स्ट देखो क्या कहता है बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स. पहला फैक्टर क्या कर रहा है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल्स का नेचर कैसा. तो देखिए पी डी एंड एफ आर डायरेक्शनल नेचर, ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, एंड डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स मोर ओवरलैप करते हैं. एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, और ये लेस ओवरलैप करते हैं. अगर ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा तो ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज, मोर स्टेबिलिटी. कम ओवरलैपिंग है तो कम स्टेबिलिटी, यानी पी और पी ओवरलैपिंग होगा तो ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा, एस और एस ओवरलैपिंग है तो कम पेनिट्रेशन होगा, ठीक है ना. ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना. चलो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, अगला बेटा देखो नेक्स्ट कहता है क्या आपका, पहला हो गया था क्या आपका, तो पहला हमने डिस्कस किया बेटा, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, देखो पहला कॉन्सेप्ट था नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना. पहला कॉन्सेप्ट था क्या, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, और सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपको क्या, सेकेंड कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना. तो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग का नेचर किस तरीके का. तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ओवरलैपिंग बेटा दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है लीनियर ओवरलैपिंग और एक हो सकता है लैटरल ओवरलैपिंग. जो लीनियर ओवरलैपिंग होते हैं उस लीनियर ओवरलैपिंग को हम को एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं. दूसरा जो होता है वो होता है को लैटरल ओवरलैपिंग, जिसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना. अब देखिए अगर आपका को एक्सियल ओवरलैपिंग है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर, क्योंकि न्यूक्लियस एक लाइन पर लाई करेगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आकर के अलाइन हो जाएंगे, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई स्टेबलिस्ट होगा. लेकिन जहाँ पर कोलैटरल ओवरलैपिंग होगा, दैट मीन्स ऐसा कुछ देखिए, अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे विथ अपोजिट स्पिन. ये लीनियर ओवरलैपिंग. लैटरल ओवरलैपिंग है, न्यूक्लियस यहाँ है और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है, तो न्यूक्लियस से दूर है इलेक्ट्रॉन, इसलिए लैटरल ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता है ना. लीनियर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक्सटेंट क्या है आपका, ज़्यादा है, और वहाँ पर एक्सटेंट क्या है, कम, ठीक है. तो यहाँ पर एक्सटेंट ज़्यादा है बेटा, वहाँ पर एक्सटेंट कम, ठीक है. सो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, तो देखिए क्या कहता है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी मोर व्हेन द कोएक्सियल ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, एंड द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस व्हेन द कोलैटरल ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस. नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग में पी और पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग एस और पी से ज़्यादा होता है, और एस और पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग एस और एस से ज़्यादा होता है. पी और पी में ज़्यादा क्यों होगा, बिकॉज ये डायरेक्शनल नेचर का होते हैं. एस और पी में कम क्यों हो जाए, क्योंकि एस नॉन डायरेक्शनल नेचर का है. एस और एस में और कम क्यों हो गया, बिकॉज एस और भी ज़्यादा नॉन डायरेक्शनल नेचर का है. तो दीज आर द रीजन्स ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग. यहाँ तक कोई डाउट वाली बात तो नहीं है बेटा ने. ओके, फिर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, एस और एस एटॉमिक ओवरलैपिंग को समझना थोड़ा सा. तो देखिए एस और एस एटॉमिक ओवरलैपिंग को समझने के लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर क्या, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन. हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं बेटा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन H2. H2 कहने का मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन. अगर दोनों हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s1 प्लस 1s1. मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मैंने बोला पहला ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ. दूसरा ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन्स के साथ.
अब क्या होगा यहाँ पर, दोनों जब एक दूसरे के साथ आएगा अट्रैक्शन के लिए, तो पहले रिपल्सिव फोर्स लगेगा और रिपल्सिव फोर्स से इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन से अलाइन हो गया बेटा, और अलाइन होकर के अपोजिट आ जाएगा, और जब अपोजिट स्पिन में आएगा तब ओवरलैपिंग हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। कैसे? ये वाला न्यूक्लियस इसको फोर्स लगाएगा और ये वाला न्यूक्लियस इसको फोर्स लगाएगा, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और इस ओवरलैप्ड एरिया में दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक का स्पिन प्लस हाफ और एक का स्पिन माइनस हाफ। थोड़ा सा और लार्जर डायग्राम बनाना था ताकि आपको समझ है ना। ये लार्ज स्पिन, यहाँ पर दोनों का न्यूक्लियस, और बेटा जी ये रहे एक इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो सच टाइप ऑफ bond formed due to the coaxial overlapping of the atomic orbitals, then such type of bond is known as sigma bond. तो हम क्या देख पा रहे हैं, when the linear overlapping of atomic orbitals takes place due to the coaxial overlapping of two orbitals, the sigma bond can form, right ना। तो sigma bond का फॉर्मेशन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एस और एस ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के टर्म। अब देखो बेटा रे, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग क्या है अपना, पी और पी। चलो तो पी और पी का एटॉमिक ओवरलैपिंग हम लोग देख लेते हैं। तो पी और पी के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन का, ठीक है ना, क्लोरीन का या फ्लोरीन का ले सकते हैं। देखो फ्लोरीन का F प्लस F, ये दोनों कंबाइंस करके F2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p5, तो 5 4 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने, 7 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है बेटा, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, ठीक है। और वो कौन सा अनपेयर्ड है, तो देखो ये s हो गया, और p में 3 बॉक्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3, यहाँ पर तो पेयर्ड हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो देखो यानी यहाँ पर क्या है, 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1। तो z में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों फ्लोरीन के z में एक इलेक्ट्रॉन है। और pz डम्बेल शेप का होता है। pz किस शेप का होता है बेटा, तो pz डम्बेल शेप का होता है। तो मैंने बोला क्या, pz अगर डम्बेल शेप का होता है तो एक फ्लोरीन का pz और दूसरे फ्लोरीन का pz एक दूसरे से ओवरलैप करके यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो एक फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन्स दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयर करके F2 बॉन्ड बनाता है, और ये भी एक तरीके का सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड क्यों है, बिकॉज द बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ p एंड p ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्लियर ना। तो हाइड्रोजन बना s और s ओवरलैपिंग से, और फ्लोरीन बना किससे, F2 बना किससे, p एंड p ओवरलैपिंग से। तो देखो आपको पहले ना बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना है, ठीक है। बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आएगा। तो कीप पेशेंस, है ना, यहाँ तक पेशेंस आप रखें। एंड आपको मैं बेसिक से लेकर के ना आपको हायर लेवल तक हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक समझा रहे हैं, अभी मैं अपने टच में आपको ला रहा हूँ। अपने टच में लाने के बाद ही मैं आपको रेल बनाऊँगा, ठीक है ना। मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि हाँ अब आप इतना जान रहे हैं, ठीक है, तभी आप रेल बन पाएंगे, है ना। सो प्लीज़ कीप पेशेंस। अब देखो ध्यान से, अगला चीज़ समझना, ठीक है, P एंड S एटॉमिक ओवरलैपिंग। तो P एंड S एटॉमिक ओवरलैपिंग का मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, या हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, छोटा एटम्स है, कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 1s1, और फ्लोरीन का 9 होता है। अभी हमने डिस्कस किया था क्या, 1s2 2s2 2p5। तो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्लोरीन के pz अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन, और
पीजेड के 1 इलेक्ट्रॉन्स और पीजेड के 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों न्यूक्लियस के द्वारा एक फोर्स सेटअप हुआ और दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास है। जब दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आए तो कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग हुआ, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग हुआ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुए, है ना। तो इस तरीके के बॉन्डिंग से जो HCl सेटअप हुआ, इस HCl में भी बेटा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं समझ लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड ही है ये। यहाँ पर जो HCl का फॉर्मेशन हुआ, दैट कंपाउंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट, सिग्मा बॉन्ड, कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। So the sigma bond can be formed by the coaxial overlapping of 2 different atomic orbitals. क्लियर है ना? आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, ठीक है ना। अभी तक हमारी जर्नी बेहतर रही है, ओके।